telling you that any complex number which is written in general form, that is x plus iota y, can be replaced by an ordered pair like x comma y. So these examples I have given. One mathematician named as Argand, A-R-J-A-N-D. He thought over the concept that if we can plot a real number, say 3, 4, on the x and y axis, that is on the rectangular axis, then how can we find a way to express our complex numbers on a z plane? Z plane is called as the complex plane. So on the z plane, you replace the x-axis by the real axis, you replace the y-axis by the imaginary axis, and where the hello. और मैंने लेट ज्वाइन किया, मेरी अटेंडेंस कार्ड भी बताओ, आपसे मैंने कहा सेशन शुरू हुआ कि उसको बताया थे, बोलो क्या है आपका आईडी? आईडी क्या है? आप आईडी नहीं बता रहे अपनी? आपकी आवाज भी कट रही है ना? अश्मील मोसानी, यू आर अश्मील मोसानी, राइट? चलिए लगा दिया आपके टेक्निक। ओके, आइए अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, द कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये जो फिगर आप बनाते हैं ये कहलाती है अर्गन डायग्राम। लुक हियर, draw the x and y axis. इस x axis का नाम हो जाएगा रियल एक्सिस, ओके, कॉल इट ए रियल एक्सिस। y axis को आप कहेंगे इमेजिनरी एक्सिस। अब कोई नंबर है, फर्स्ट कर लें 3 + 2 iota, कैसे करेंगे? 3 you will take on the real axis because this is the real part, and 2 you will take along the imaginary axis because this is with iota, so this is the imaginary part. ये 2 आ गया, तो wherever the two lines cross each other on the graph paper, so this solid point, this is showing this complex number 3 + 2 iota, or in the ordered pair you may write 3, 2, fine. But we call it the complex plane. This whole plane is known as the complex plane. A figure representing one or more complex numbers on the complex plane is called an Argand diagram. तो जब complex plane पर आप कोई complex number plot करते हैं and you draw a line from the origin to that number, और ये बता दें ये है आपका complex number. This representation of complex number on the complex plane is known as the Argand diagram. Points on the x-axis represent the real axis, whereas points on the y-axis represent the imaginary numbers. Conjugate, I told you, conjugate of a complex number is obtained by changing the sign of the imaginary part of the complex number. जैसे x + iota y है अगर कोई नंबर, तो z बार, इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं. Bar shows the complex conjugate, and you are to change the sign of the imaginary part. The answer will become x - iota y. Two complex numbers are equal if their real parts are equal and imaginary parts are equal. ये कुछ बातें होती हैं जो याद होनी चाहिए. जैसे x + iota y अगर है 2 - 6 iota, तो x is 2 and y is -6. Okay, this is the equality of two complex numbers. The union of the rational and irrational numbers yields the set of the real numbers denoted by R. पढ़ा होगा ना 9th class में in metric में. You studied all the sets. देखिए, I'm repeating just for your knowledge. If somebody asks you what are the real numbers, सुन लें, फिर से दोबारा सुन लें. The set of natural numbers, पढ़ा हुआ आपने 1, 2, 3, 4, 5, and so on and so forth up to infinity. This is the set of natural number. If I start the same set with 0, this is called set of whole numbers.
सुनते जाएं, याद रखते जाएं। फिर अगर इसमें हम नेगेटिव नंबर पे ले लें, स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी, कमिंग -3, देन -2, देन -1, देन 0, 1, 2, 3 एंड गोइंग टू प्लस इन्फिनिटी, दिस सेट इज नोन एज, किसको पता है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज दिस नेम ऑफ दिस सेट? बोलो। सच अ बिग क्लास। क्या कहते हैं ऐसे सेट को? क्या कहते हैं बच्चे? इंटीजर्स कहते हैं। शाबाश, इंटीजर। इनको इंटीजर्स कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया, 3 सेट बता दिए ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। अब देखिए एक सेट मैं बना रहा हूं, उसकी कोई तरतीब तो नहीं है, तो देखिए मैं कर क्या रहा हूं कि आई एम टेकिंग 2 इंटीजर्स और एक को दूसरे से डिवाइड कर रहा हूं, और ऐसे नंबर जो डिवाइड ना कर सकें, जैसे 4 को 2 से डिवाइड करो तो कट के 2 हो जाएगा ना, वो नहीं लेना, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं लेना। 2 और नीचे हो 4 तो ये कट के 1/2 आएगा, ठीक है। इसी तरह 3/7 आ गया, ओके। 9/14 आ गया, नहीं कट रहा। जो नंबर कैंसिल ना होते हैं, कोई कॉमन फैक्टर उनमें ना हो, ऐसे नंबरों को क्या कहते हैं? हु नोस? प्लस माइनस के साथ हो, किसको पता है? शाबाश, बोलो बोलो, पढ़ा हुआ है सब, 9th में सबने पढ़ा हुआ है, एवरीबॉडी क्वालिफाइड 9th मैट्रिक। क्या कहते हैं जी? जैसे +-1/2, +-3/5, +-7/3, लाइक दैट। ऐसे नंबर होंगे तो उनको क्या कहेंगे हम? अरे भाई, कैलकुलस पढ़ने आए हो, कैलकुलेशन ठीक नहीं। इनको कहते हैं रैशनल नंबर्स, याद रखिए। क्या कहते हैं इनको? रैशनल नंबर। लिख लो कहीं, +-1/2, +-3/2, +-5/7, +-9/11, कुछ भी है, जो नंबर कैंसिल नहीं हो रहे हो एक दूसरे से, होल नंबर जिसका आंसर ना आता हो, फ्रैक्शन में आए, इनको कहते हैं रैशनल नंबर। लिख लीजिए, RATIONAL। डन। अच्छा बताएं, √-4, माइनस अंदर है, अंडर रूट के अंदर है, क्या आंसर आएगा? सर मैंने चैट पर आपको सेंड किया है। क्या चीज? नहीं नहीं बेटा, मुझसे जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप बोले ना, मैं उधर चैट पढ़ूँ या आप लोगों से बात करूँ? चैट पे ना सेंड करें, कुछ भी मैं बात से आपसे पूछता हूँ, आप बोलेंगे तो पूरी क्लास में शेयर होगा ना, एवरीबॉडी विल कम टू नो। चैट में तो सिर्फ इट विल रिमेन बिटवीन यू एंड मी। आई विश जब डिस्कशन हो तो हर आदमी एक दूसरे की बात सुने, गलत होगी तो मैं बता दूंगा ताकि सब लोग बचें उससे, सही होगी तो आई विल अप्रिशिएट, सो दैट एवरीबॉडी शुड फॉलो दैट। ठीक है, चैटिंग नहीं करें, ट्राई योर बेस्ट, चैटिंग को कम से कम रखें, डिस्कशन करें। तो आई वाज टेलिंग यू अबाउट द रैशनल नंबर्स, ठीक हो गया भाई। ये कुछ नंबर्स होते हैं अंडर रूट के अंदर, मैं आपसे पूछ रहा था √-4, माइनस अंदर है अंडर रूट के, क्या आंसर आएगा इसका? सर 2 आयोटा। शाबाश, अभी पढ़ाया, बिल्कुल अभी पिछले नोट्स में ऊपर देखिएगा तो नजर आएगा 2 आयोटा, माइनस √-9, -9 है और अंडर रूट ऊपर है पूरे में, क्या आएगा? सर 3 आयोटा। 3 आयोटा, शाबाश। अब मुझे बताओ, माइनस अगर बाहर हो जाए और अंडर रूट के अंदर 9 हो, क्या आंसर आएगा? सर सर सिंपल, सर -3। -3, शाबाश। अब अगर अंडर रूट के अंदर आंसर हो, वैल्यू हो 2, सिर्फ सिंपली अंडर रूट 2, या सिंपली अंडर रूट 3, या सिंपली अंडर रूट 5, ये नंबर क्या होंगे? सर √2 आयोटा आ जाएगा, क्योंकि वो माइनस जो होगा वो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। मेरे बच्चे जी जी। क्वेश्चन नहीं बोलना पहले और से, मेरा क्वेश्चन है √2, √3,
√5, जरा दिमाग में इसको बैठा लें। इन नंबरों का एक नाम है, क्या नाम है सर? इरेशनल होती है। शाबाश, बिल्कुल ठीक। देखा ना, आपने बोला तो सबको समझ में आई ना। Such type of numbers are known as irrational number. इनके बाहर इरेशनल नंबर्स होती है सर। अंडर रूट से बाहर प्लस भी लग सकता है और माइनस भी लग सकता है, लेकिन माइनस अगर अंडर रूट के अंदर गया तो वो हो जाएगा इमेजिनरी। ठीक है, अगर माइनस, जैसे -√3, ये क्या होगा? ये इमेजिनरी है या इरेशनल है? इरेशनल। ये इरेशनल है, ठीक है, क्योंकि माइनस बाहर है, लेकिन माइनस अगर अंदर आपने भेज दिया √-3 तो ये हो जाएगा इमेजिनरी। ठीक, देखिए हम पढ़ते बहुत कुछ हैं, याद बहुत कम रखते हैं। छोटा सा फर्क कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन -√3 और अंडर रूट के अंदर -3 और एक में माइनस बाहर है, फर्क क्या है? तो एक है इमेजिनरी नंबर है और दूसरा इरेशनल नंबर। ठीक, फर्क समझ में आ गया ना? नंबर सेम है, बस माइनस का पोजीशन का फर्क है। इमेजिनरी में माइनस इनसाइड द अंडर रूट है और इरेशनल में माइनस साइन जो है वो अंडर रूट से बाहर है। गॉट दिस कॉन्सेप्ट? अच्छा जी, अब ये जो जितना भी मैंने सेट्स बताए हैं, कौन कौन से बताए थे? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, इन सबको यूनियन कर दें तो क्या बनता है? क्या बनता है? द यूनियन सेट ऑफ ऑल दीज 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। नहीं मेरे भाई, अल्लाह रहम करे तुम पर, रियल नंबर बनता है। अच्छा, याद रखना, ये जितने हमने 5 सेट्स के नंबरों को डिस्कस किया है ना, ये सब के सब रियल नंबर है। एवरी नंबर इज रियल, चाहे वो रैशनल में है, चाहे वो इररेशनल में है, चाहे वो इंटीजर से ताल्लुक रखता है, चाहे वो होल नंबर से ताल्लुक रखता है, चाहे उसका ताल्लुक नेचुरल नंबर से। Every value in these sets is a real number. So the union of all these 5 sets is a set of real number. Okay? इमेजिनरी आपको बताया था, अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ रहा है तो वो इमेजिनरी है। अब एक आप रियल नंबर पकड़ें और एक आप इमेजिनरी पकड़ें, दोनों को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या बन जाएगा? फिर कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। ओके जी, समझ में आ गया? हाँ या ना? यस और नॉट? जी, सुमेरा खुशी अपने बंद कर लेंगे सिस्टम को, यहाँ से इसको बंद करें अपना। जी, गॉट इट? भाई एक एक्सरसाइज के कुछ सवाल है, ये हायर पावर्स हैं, आयोटा की पावर 9 कैसे हल करना, ये सब आपको आना चाहिए। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे, बड़े आसान से, आई होप यू कैन डू इट योरसेल्फ, जिसे मुझे बताने की जरूरत नहीं। हाँ, क्वेश्चन 4 से मैं एक सवाल करा देता हूँ आपको, क्योंकि ये पेपर में आपको दे सकता हूँ, क्विज में भी दे सकता हूँ कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 2 3 कहीं। जी बोलिए, पूछा करें। आप एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे तो फील गुड, आई विल बी हैप्पी दैट यू आर आस्किंग सम क्वेश्चन इफ इट इज नॉट क्लियर। पूछो, किसको कुछ पूछ रहे हैं? एनीबॉडी? क्वेश्चन 4 में से मैं देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए किया है। अच्छा देखें, हर क्वेश्चन से एक पार्ट किया। क्वेश्चन 3, माइनस आयोटा की पावर 19 को मैंने कैसे सॉल्व किया है? माइनस तो बाहर ही रखा, ठीक है, जब पावर ऑड होती है ना तो इट रिमेन्स माइनस, तो माइनस को बाहर कर दिया। अब आयोटा की पावर 19 को लिखा है आयोटा पावर 2 और आयोटा पावर 17, 17 प्लस 2 19 हो जाएगा ना। वंस बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। ये कानून पढ़ा है ना, लॉज ऑफ इंडिसेस कहलाता है ये। क्या? इंडिसेस। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है -1 होती है, तो ये -1 ये -1 पर प्लस हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा 1 और आयोटा पावर 16। आयोटा पावर 16 होता है आयोटा स्क्वायर की पावर 8। आयोटा स्क्वायर पे -1 रखोगे तो
और उसकी पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आयोटा ही ऐसे ही चल रहा है और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो नेट आंसर में आंसर क्या आ गया, आयोटा। तो माइनस आयोटा की पावर 19 विल बी आयोटा। इसको देखो क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, इसका माइनस अलग कर दिया ब्रैकेट्स, अंडर रूट से इसको बाहर अलग कर दिया। तो अब इसको लिखा, ये 4 का स्केल, ये 16 है ना, इसको 4 का स्केल लिख सकते हैं और 25 को 5 का स्केल लिख सकते हैं। तो अंडर रूट से जब स्केयर है ये कट जाएगा तो 4/5 बच जाएगा, राइट। और आयोटा इसके साथ लग जाएगा, डैम सिंपल। ये तो सिंपल तरीका। तो देखिए क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट में कर रहा हूँ, where you are going to separate the real and imaginary parts. सर ये समझ नहीं आया। कौन सा ये वाला? सर हाँ बोलो। सर हाँ बोले। क्वेश्चन टू। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, उन्होंने कहा इसको सिंप्लीफाई करो। सर ये आप ये रूट -1 आपने रूट का अलग कर दिया, देन ये 42/52 कहाँ से आया? ये थोड़ी पावर नीचे लिखी गई है। ये 16 जो है ना 4 का स्क्वायर लिखा है और 25 को 5 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है। अच्छा ये यूं लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है ये पावर से इनकी, अच्छा। ठीक है 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, 5 का स्क्वायर 25, ओके। स्क्वायर सेंटर सर कैंसिल हो जाता है। कुछ सर ये आप हमें पीडीएफ फाइल शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पे? बिल्कुल कर देंगे, मिल जाएगा आप। अच्छा सर, जो आप लेक्चर्स आप वीडियोस अपलोड करेंगे ना? हाँ क्या, सही है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ये लेक्चर नोट सारे आपको दे दूंगा, ठीक है। ओके। ओके आइए जनाब इस क्वेश्चन पे, ये दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये जो आपके सामने है अभी आपको देखिएगा, ये आपने पढ़ा हुआ है अभी अलजेब्रा में पढ़ के आ रहे हैं आप लोग। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे है उसका स्क्वायर। चलिए उसने कहा है कि सबको सिंप्लीफाई करके इसका रियल पार्ट अलग करके लिखें और इमेजिनरी पार्ट अपने, इसीलिए इसका क्वेश्चन का नाम क्या है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। So first you simply multiply the two brackets. तो 2 से मैंने कहा था ना तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करें ऑफ द सेकंड ब्रैकेट, तो 2 1 2 and 2 to the -4 iota. Then take the second term, 3 times 1 3 iota, and then 3 times 2 -6। देखिए प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस होता है, -6 और आयोटा का स्क्वायर। रिप्लेस आयोटा स्क्वायर विद -1, राइट। और नीचे स्क्वायर खोलना आपने, तो स्क्वायर ऑफ 1 बट ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म पढ़ा है ना, 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड टर्म, 2 into 1 into 4 iota plus the square of the second term, that is 4 iota square। आयोटा स्क्वायर को हमने रिप्लेस किया -1 से, ये आ गया -1, और इसी तरह ये बन जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 आयोटा, और ये 1 का 1 ही रहेगा। तो आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस करोगे फिर -1 से तो -16, इट विल बिकम -16, तो 1 -16 प्लस 8 आयोटा, और ऊपर चल रहा है मामला ये +6 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 + 6 और माइनस आयोटा, 8 माइनस आयोटा इन द न्यूमरेटर and -15 plus 8 iota in the denominator। अभी आपका मसला खत्म नहीं हुआ, अभी आप सेपरेट नहीं कर सकते इसको रियल इमेजिनरी पार्ट्स में। क्यों? बिकॉज बोथ आर द कॉम्प्लेक्स नंबर, अगेन ऊपर और नीचे। जब तक नीचे वाला सब सिर्फ रियल नंबर बन जाए, एक रियल नंबर बन जाए, तब तक आपको ये प्रोसीजर्स कंटिन्यू करने होंगे। तो अब आप इसको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे बोथ। So now multiply both numerator and denominator by the complex conjugate of the denominator। जी कौन बताएगा -15 + 8 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा? रियल नंबर को हमने नहीं छेड़ना, वैसे रहेगा -15, और इसका जो साइन है वो बदल देंगे इमेजिनरी पार्ट का। तो ये प्लस है यहाँ पे, आपने इसको क्या कर देना माइनस। ये जो नंबर आया ये है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। इससे ऊपर और नीचे बोथ यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ numerator as well the denominator by the conjugate।
Now, the conventional style, I told you how to multiply. Multiply 8 with all the terms. 8 into minus 15 is minus 120. 8 is the 64 with minus sign. Then minus minus plus 15 iota. Then minus minus plus 8 iota square. Iota into iota is iota square. So be careful. Then I told you a formula. If there is a plus b and a minus b, then you can use this formula. A square minus times b square. This formula is very well known to everybody. अब आप इसको सिंप्लीफाई करें. The minus 15 square is 225. 8 iota square will be 64 iota square. ऊपर भी सिंप्लीफाई कीजिए तो this will become minus. The last term will become minus 8. So minus 8 and 120. Okay. Add them to minus 128. And minus 64 iota plus 15 will be minus 49 iota. So minus 128 minus 49 iota divided by 225, and this will become plus 64 because iota square will be minus 1. So minus 1 into minus 64 will be yielding plus 64. Just simply add them. 289 will be there in the denominator. अब देखिए यहाँ पे अब आगा एक रियल नंबर आ गया, and this is no more a complex number. तो इस रियल नंबर को अब दोनों पे डिवाइड कर दें, यानी रियल पार्ट पे भी और इमेजिनरी पार्ट. तो माइनस 128 ओवर 289 और माइनस 49 अपॉन 289. ये तो आपका सोल्यूशन आया, लेकिन इसमें अब आप अलग करेंगे तो दिस इज द रियल पार्ट, minus 128 upon 289. In imaginary part, I told you, I am telling you again and again that don't write minus, iota. Don't write iota. The rest, its coefficient you write. The coefficient of iota is minus 49 upon 289. Okay. Is this method clear? Anybody having any trouble, any difficulty? Puchi, if you wish to ask any question, you can. बोलिए, क्लियर या नहीं क्लियर? नहीं बोल रहे आप लोग? पार्टिसिपेट किया करें भाई. ओके, ये देखिए तमाम फॉर्मूलाज. 10 मिनट रह गए, कोई बात नहीं. ओके, ए प्लस बी. अच्छा, कुछ बुक्स में ना आई की जगह जे भी यूज करते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर. तो दिस ऑथर हैज रिटन जे. कोई बात नहीं. ए प्लस बी जे प्लस सी प्लस डी जे. तो ए प्लस सी रियल पार्ट को ऐड किया और इमेजिनरी पार्ट करके जे लगा. द सेम फॉर्मूला दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू. ज्यादा अच्छे तरीके से मैंने आपको पढ़ाया. दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू जेंटलमैन. ये आप देख लीजिएगा. आप जैसे √3 माइनस 2 आयोटा, इसका स्क्वायर कैसे बोलेंगे? है तो आसान चीज है. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पता है, मैंने डिवीजन सिखाई है आपको. नीचे वाले के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें और सिंप्लीफाई कर दें, फिर सेपरेट कर दें रियल इमेजिनरी पार्ट्स. दीस वेरी सिंपल क्वेश्चंस आर देयर. अब ये जैसे है क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसमें माइनस से पहले ब्रैकेट्स खोल लें आप, फिर रियल को रियल में ऐड कर दें और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड कर दें. ये देखिए, अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, 2 नंबर मल्टीप्लाई किए और 1 से डिवाइड किया. ये है ना, अभी हमने सेपरेट इनटू द रियल एंड. अब जो अच्छे बच्चे होंगे वो हर कैटेगरी से 1-2 सवाल पकड़ेंगे, एक रजिस्टर बना लेंगे अपना, और उसमें 1-1, 2-2 क्वेश्चन आप कर लीजिए. इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. सारी जो डिस्कशन हमने की है, that will be then sustaining in your minds. और असल चीज पढ़ने का मकसद ये होना चाहिए कि हमने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ सीखा, वो ये नहीं कि जितनी देर हम बैठे रहे हमें पता चलता रहा कि हाँ ठीक है, सब ठीक है, लेकिन जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ 1 हफ्ते के बाद क्विज आया तो मालूम हुआ कुछ भी ठीक नहीं है. क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक ना? जब मैं आपसे क्वेश्चन कहता हूँ कि पूछो, तो पूछा करें. किसी को भी कोई क्वेश्चन समझ में आए, बट क्वेश्चन थोड़ा सा
सेंसिबल हो, रिलेटेड हो आपके टॉपिक से, जरूर पूछें। जितना डिस्कशन करेंगे उतनी ही बात आगे समझ में आएगी। देखिए अभी 7-8 मिनट बाकी हैं। अब मैं आपको सिर्फ एक फॉर्म समझा रहा हूँ। यहाँ तक तो आपने सारा वो पढ़ा था जो पिछले क्लास में आपने अटेंड। अब हम आपको थोड़ा सा सिखा रहे हैं नया। सर मुझे पोलर जी की डेफिनेशन बताएं। क्या हुआ? हेलो, एनीबॉडी आस्किंग एनी क्वेश्चन? कह रहा हूँ पोलर की डेफिनेशन दिखाएं। नहीं, मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आएगी, जरा जोर से बोलिए। हेलो, कोशिश करा करें कि एक अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करें, कोई अननेसेसरी नॉइज या डिस्टॉर्शन न पैदा हो तो अच्छा है। इसमें कि सब लोग बड़े गौर से सुन रहे होते हैं, चीज़ों को कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। आपका आधा जो काम होता है ना वो खत्म हो जाता है वहीं पे, जो अब आप लेक्चर वहीं पे बैठ के समझ जाते हैं। बाकी उसको एक अच्छा इमेज बनाने के लिए दिमाग में, वो आपको फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये दो चीजें हैं, साथ साथ लेके चलिए। जब आप सुन के समझ लेंगे तो फिर ही कर सकेंगे ना कुछ। अगर लेक्चर ही समझ में आया तो फिर बाकी एक्सरसाइज करना बड़ा मुश्किल होता है। आइए अब ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, अभी तक जो आपने x प्लस आयोटा y पढ़ा था ना, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। कहीं लिख लें z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, इसको क्या कहते हैं? लिख लें RECTANG, रेक्टेंगल लगता है ना, रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ इसको। The complex numbers have been successfully applied to problems in science and technology, in part because of their geometric interpretation. To explicit this interpretation fully, we need to be able to represent a complex number in terms of its absolute value and its argument. Absolute value हम r को कहते हैं और argument कहते हैं theta को. This representation leads to the polar and exponential forms of the complex numbers. तो polar form देखिए क्या है? We define the absolute value r and argument theta of a complex number. ये figure आपको refer कर रहा है वो. Now consider the complex number x plus iota y on the Argand diagram, and r is the argument and theta is the absolute value and theta is the argument. सर मुझे समझ नहीं आ रहा पोलर फॉर्म क्या होता है। देखो अभी इधर देखो तुम जरा, ये फिगर आपको नजर आ रही है? एक्स वाई एक्सिस बना सकते हो? ठीक है, ये ठीक है? एक्स वाई एक्सिस समझ में आता है नहीं आता है? बोलो भाई, जब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ तो जवाब दे। जी बना सकता हूँ। अब यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा वाई आपको भी मैंने अर्गन डायग्राम पे कुछ प्लॉट करना सिखाया था। एक्स प्लस ठीक है, यानी एक्स कॉमा वाई, तो ठीक है इस पे एक्स वैल्यू ले ली या वैल्यू ले ली, हो गया। अब आप इसको ज्वाइन कर सर। दे। वो आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है क्यों? इज माई वॉइस नॉट क्लियर टू एवरीबॉडी? सर आवाज सही आ रही है। इतना मैंने इसको वॉल्यूम भी इसका अपना बढ़ा दिया है ताकि अच्छी तरह समझ में आए। आपके माइक वाइक का तो प्रॉब्लम होगा, चेक करवाइए। मेरे पास नेटवर्क का इशू है। देखिए फ्रॉम माई साइड इज ओके, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा जी, ये आपने अर्गन डायग्राम पे x प्लस वाई प्लॉट कर दिया और इसको ओरिजिन को ज्वाइन कर दें। इसको आप इसको P ले लें और ओरिजिन से इस पॉइंट P तक का फासला जो इसको R कर लें। R इज द रेडियस वेक्टर, नहीं पढ़ते थे आप लोग जैसे रेडियस वेक्टर, इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। और ये जो एंगल थीटा है इसको कहते हैं हम आर्गुमेंट। ठीक है, थीटा। अब ये R है और ये एंगल थीटा है। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, इस पॉइंट P से, इसको मैंने कहा ना P, आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर। फर्स्ट कर लें, ये P से लेके ये पॉइंट आ गया A। फर्स्ट कर लेते हैं ये पॉइंट A, P से A तक। तो
ये कितना फासला है, डिस्टेंस कितना है, पी से ए तक कौन बताएगा? Who can tell me what is the length of PA? x minus y. नहीं मेरे बच्चे, ये जो वर्टिकल एक्सिस पे जितना यहाँ से ये फासला है उतना ही वहां से ये फासला है ना? तो सेकंड कोऑर्डिनेट नहीं हुआ, y नहीं हो गया ये? क्यों भाई? ये फासला क्या होगा? y। और इस a से लेके ओरिजिन तक ये क्या फासला है? सर x हो X जाएगा। ये X हो जाएगा। बिल्कुल ये x है सर। और ऊपर जाएंगे तो ये y हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया y, ये हो से यहाँ a तक हो गया x और ये हो गया r। ट्रायंगल बन गई ना आपके। x है, y है और r। आपने फिजिक्स पढ़ी है, फिजिक्स के अंदर एक वेक्टर को जब रिजॉल्व करते हो इनटू इट्स कंपोनेंट्स, तो फर्स्ट कर लो ये मेरा वेक्टर r है और ये मेरा एंगल है थीटा, तो इसका x कंपोनेंट क्या आएगा? मैंने यहाँ पॉइंट लिया ना a, o से a ये x कंपोनेंट कहलाएगा। तो रिजॉल्व योर वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट क्या बनेगा, कौन बताएगा? x की क्या वैल्यू आएगी? सर y से जो परपेंडिकुलर नीचे है। हाँ मैंने परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ किया ना नीचे, तो ये पॉइंट आ गया a, o से a तक ये कहलाएगा x कंपोनेंट और a से लेके इस पॉइंट p तक ये कहलाएगा y कंपोनेंट। ठीक है ना? तो x कंपोनेंट की वैल्यू कोई बता सकता है? r is the magnitude of the radius vector and theta is the angle which it is making। the radius vector जो एंगल बना रहा है थीटा। फिजिक्स नहीं पढ़ी थी, भूल गई? सर cos ले लेंगे एंगल का शाबाश, पूरा बोलो ना, r cos थीटा हो जाएगा। r से मल्टीप्लाई। r cos थीटा, हाँ से मल्टीप्लाई होगा। यस। शाबाश। और मुझे ये बताओ y की वैल्यू क्या आएगी? ये जो ये y हमने लिखा हुआ यहाँ से यहाँ तक, r sin तो वो theta। sin थीटा हो जाएगा। r sin थीटा। अल्लाह भला करे। याद आ गया कुछ? सब आ गया? तो यही तो लिखा है मैंने, x क्या बना? r cos थीटा, y क्या बना? r sin थीटा। अब जरा इन दोनों को ऐड करो, x प्लस आयोटा y निकालो इन दोनों की मदद से। इन दोनों की मदद से क्या निकालना है तुमने? x प्लस आयोटा y। तो क्या बन जाएगा? वो हो जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। दो इक्वेशंस हो तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होती है और राइट में ऐड हो जाती है। अब मैं कह रहा हूँ ना x तो ऐसे ही रहेगा, इसके साथ लिखोगे प्लस आयोटा y, हम इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x प्लस आयोटा y will become r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। Am I right or not?